वेलकम ब्रदर, वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। आई थिंक सो, मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा ईमान है कि आप सब लोग बड़े खुश होंगे। कल आपने मदर्स डे मनाया, मेरे ख्याल ढेर सारे केक शेक कट्टे होंगे, खाते भी होंगे होपफुली। कोई शक नहीं। बीइंग अ मदर एक अलहदा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਨ ਔਰ ਅ ਡਾਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਮ ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਔਰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ, ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਫੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਰਮੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਿਸਟਰ ਕੈਥਰੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? आगे ने प्रवेश साहब जी बोलणगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਸਟਰ ਕੈਥਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਰਮੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸੋਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਨੀਓ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਰਮੀਆ ਵੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 9 ਬਾਬ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 722 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਯਰਮੀਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਯਸਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਰਮੀਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਵੇਖਦਾ ਵੇ, ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਦਾ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੇਖਦਾ। ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਯਰਮੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਬੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ। ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਲਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਹੈਕਲ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲਤ ਸਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਰਕੈਫ ਅਸੀਂ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਨਬੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਰਿੰਗ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। 53 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੈਨੂਅਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਜਰ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਰਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦ ਬਣਨਗੇ। ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 31 ਬਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਪਲੀਜ਼। ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 31 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 31 ਤੋਂ 40 ਆਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਕੈਥਰੀਨ ਯੂ ਕੈਨ ਓਪਨ ਯੂਰ ਮਾਈਕ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹੈਗੇ नहीं। देखो वो दिन आते हैं
देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैं उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैंने उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे, खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद न करूंगा। खुदावंद जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी। आमीन आमीन वेरी मच। सो इधर हमें एक नया प्रॉमिस नजर आ रहा है, एक नए अहद का प्रॉमिस नजर आ रहा है। कोई मुझे गाइड करेगा कि कलाम मुकद्दस में कितने अहद मिलते हैं खुदा के? खुदा के अहदों की बात कर रहा हूं, इंसानों के नहीं। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आइडिया पहले मैंने सुना था 32,500 खुदा ने जो अहद वादे जो खुदा के इंसान के साथ है। हाँ नहीं, सिर्फ मैं खुदा के अहद पूछ रहा हूँ कि खुदा ने कितने अहद किए हैं। नहीं पता पुराने अहदनामे में किसी को कोई आइडिया? अगर मैं कुछ गलत न कहूं तो 8 अहद बांधे। ओके, एनीवन एल्स? थैंक यू इल्मास भाई, वेलकम बैक। थैंक यू ब्रदर। मेजर जो अहद हमें मिलते हैं वो 4 अहद मिलते हैं पुराने अहदनामे में, जो खुदा ने बांधे हैं खुद, जिनकी डिक्लेरेशन खुदा ने दिलवाई है या दी है, बिल वास्ता या बिला वास्ता। पहला अहद, जो सबसे पहला अहद है, कोई आइडिया है किसी को सबसे पहला अहद कौन सा था खुदा का? जो इब्राहिम के साथ बांधा था। इब्राहिम के साथ भी एक खुदा ने अहद बांधा है, बिल्कुल बांधा, क्यों नहीं? वो पहला जो पानी से नहीं मारूंगा दुनिया। जी बिल्कुल, पहला अहद नूह का अहद, नूह के साथ किया था खुदा ने कि मैं इंसान की गलतियों की वजह से खत्म नहीं करूंगा दुनिया को। ये पहला अहद है। पैदाइश 8 बाब 20 आयत में मिलता है, 9 बाब 17 आयत में भी मिलता है। अगर कोई निकाल ले जल्दी से पढ़ दे, 9 की 7 पढ़ ले ज्यादा अच्छा है। रिमेनिंग जो 8 बाब 20 से 22 आयत है वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो 9 बाब 7 आयत, सॉरी 17 आयत देखा, बस खुदा ने नूह से कहा, मैं उस अहद का निशान जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ, दैट इज द रेनबो विच वी कॉल्ड कौसे कज़ा, जो बारिश के बाद हमें रंग नजर आते हैं, 7 रंग नजर आते हैं, धनक के रंग जिनको भी कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सो खुदा का पहला अहद मिलता है, और खुदा को अगर आप इस अहद को पूरा कंप्लीट पढ़े तो वो खुदा कहता है कि मैं इंसान के गुनाह की वजह से दुनिया को दोबारा कभी बर्बाद नहीं करूंगा। दूसरा अहद इब्राहिमिक कॉवेनेंट हमें मिलता है, इब्राहिम के साथ जो खुदा अहद करते हैं, पैदाइश 17 बाब 1 से 14 आयत तक है, जब खुदा 13 साल के बाद जो है इब्राहिम से बात करते हैं। ये दूसरा कॉवेनेंट है जो खुदा ने बांधा इब्राहिम के साथ। पहला कॉवेनेंट जो था वो नूह के साथ था कि मैं इंसान के गुनाह की वजह से कभी दुनिया को तबाह दोबारा पानी के साथ नहीं करूंगा। और वही चीज हमें मिलती है कि अगर हम ईसाया के आखिरी बाब में देखिए, नया आसमान नई जमीनों, खुदा इसे बर्बाद नहीं करेगा बल्कि इन्हें दोबारा से रिन्यू कर देगा, रीएनोवेशन कर देगा, जिसको हम कहते हैं दोबारा से बना देगा। सो दूसरा अहद इब्राहिम के साथ किया, पैदाइश 17 बाब 1 से 14 आयत में। ओके जी, पैदाइश 17, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सात बाब में लिखा हुआ है, 7 आयत में लिखा हुआ है 17 की 7 में, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान
उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा होऊंगा। लेकिन फिर खुदा कहते हैं, फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे, सो ये तुम में से हर एक फर्जंद, उसका एक निशान दिया खुदा ने। ठीक है, दैट वाज द सर्कमसिजन। खतना खुदा ने दिया, अहद बांधने का निशान है ये। दैट्स वाई पौलुस में और पतरस में नए अहदनामे में इस बात पे बड़ी लंबी बहस भी नजर आती है। सो इब्राहिमिक कॉमनेंट कि तेरी पुश्त भी माने, तू भी मानना और तेरी पुश्तें भी माने। दूसरा अहद, तीसरा अहद जो बांधा गया वो मूसा के साथ जब उसको शरीयत दी गई। खरूज 19 बाब 5 से 6 आयत, कूच की किताब। खरूज 19 बाब 5-6। सो अब अगर मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी सरजमीन मेरी है और तुम मेरे लिए कहनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होंगे, और इन्हीं बातों को तुम बनी इसराइल को सुना देना। तो खुदा यहाँ पे जो अहद बांध रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि अगर तुम सारे अहद पर चलो मेरे, तो तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत होगी। यानी इसराइल ऑलवेज रिप्रेजेंट, इसराइल हमेशा से रिप्रेजेंट करता है खुदा को, वो खुदा को दिखाता है, वॉइस रॉय है एक तरह से खुदा का। सो तीसरा जो अहद है वो मूसा के साथ खुदा ने इसराइलियों के लिए बांधा। इब्राहिम के बाद मूसा के साथ बांधा, और चौथा जो अहद है वो दाऊद के साथ खुदा ने किया। दूसरा सैमुएल 7 बाब 9 से 17 आयत तक, क्वाइट लॉन्ग, जिसमें खुदा कहते हैं कि तेरी जो है खुदा खुश होते हैं उससे। नातन नबी आके सारी डिलीवरेंस देता है उसको कि खुदा का पैगाम सुनाता है, नातन सुनाता है दाऊद को आके, क्योंकि दाऊद ये ख्याल करता है कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊं, खुदा टैबरनेकल में क्यों रहे, खैमा इज्तिमा में क्यों रहे, खुदा का एक घर होना चाहिए। अगर मैं घर में रहता हूँ तो खुदा का भी एक स्पेसिफिक घर होना चाहिए। सो कितने अहद हो गए? 4 अहद हो गए। लेकिन अब यिर्मयाह में जब हम आते हैं तो खुदा कहते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने, इसराइल के 10 कबीले और यहूदा के 2 कबीले, 12 कबीले पूरे हो गए। खुदा कहते हैं कि मैं इन सब के साथ क्या करूंगा, एक नया अहद बांधूंगा। अब जरूरत क्यों पेश आ गई नया अहद बांधने के लिए? कोई आइडिया? मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह का 32 बाब निकालिए, चैप्टर 32 ओके, वर्स 30 to 35। क्योंकि बनी इसराइल और बनी यहूदा अपनी जवानी से अब तक वक्त वही करते आए हैं जो मेरी नजर में बुरा है, क्योंकि बनी इसराइल ने अपने अमाल से मुझे गजबनाक ही किया, खुदावंद फरमाता है। क्योंकि ये शहर जिस दिन से उन्होंने इससे तामीर किया आज के दिन तक मेरे कहर और गजब का बायस हो रहा है, ताकि मैं इसे अपने सामने से दूर करूं। दैट्स द रीजन। बनी इसराइल और बनी यहूदा की तमाम बदी के बायस जो उन्होंने और उनके बादशाहों ने और उमरा ने और काहिनों और नबियों ने और यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों ने की, ताकि मुझे गजब ना करें, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ पीठ की और मेरा मुंह न किया। हर चंद मैंने उनको सिखाया और बर वक्त तालीम दी, तो भी उन्होंने कान न लगाया कि तरबियत पजीर हूं, बल्कि उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अपनी मकरूहात रखी, ताकि उसे नापाक करें। और उन्होंने बल्कि ऊंचे मुकाम जो बिन हनूम की वादी में हैं बनाए, ताकि अपने बेटे और बेटियों को मुल्क के लिए आग में से गुजारें, जिसका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया, और ना वो मेरे ख्याल में आया कि वो ऐसा मकरू काम करके यहूदा को गुनाहगार बनाए। आमीन। थैंक यू सर। सो दैट वाज द रीजन कि खुदा को एक नया अहद बांधने की जरूरत पड़ी।
इन लोगों के साथ। वो अहद जो नया 5वां अहद जो खुदा ने कहा कि मैं बांधूंगा, वो बेसिकली सारी नेशंस के लिए भी था, ना सिर्फ इसराइल के लिए, तमाम नेशंस के लिए भी था। उसको भी हम आगे थॉरली देखेंगे उसको। सो यहाँ पे हमें नजर आता है बनी इसराइल और बनी यहूदा दोनों ने क्या किया है, गुनाह किया है, आइडल्ट्री का गुनाह किया है, सबसे ज्यादा बुरा गुनाह के अबलीसी कुव्वतों इस्मानी फौजों की मलकूम का नाम यहाँ पे मिलता है 35 आयत में हमें। बहुत बड़ी डाइटी है ये, देवी देवताओं में बहुत बड़ा देवी देवताओं में इसका नाम आता है, जिसके लिए जलाया करते थे ये लोगों को, बच्चों को जलाते थे बिन हनूम की वादी में, जो कदरून, वादी कदरून और यरूशलेम के दरमियान में आती है। इनके दरमियानी रास्ते में ये वादी आती है, जिसको मौत की वादी भी हमने लास्ट टाइम देखा था जब मनसी को पढ़ा था तो किया था। सो इस वजह से खुदा जो है वो 5वां आयत बांधते हैं जो तमाम नेशंस के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि तमाम इसराइल के लिए नहीं, बल्कि तमाम नेशंस के लिए है। अदनान भाई, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थ्रू आउट ही वो मेरे माइंड में चल रही है। आपने बताया था कि यिर्मयाह की सबसे बड़ी पेशन गोई कौन सी थी? सबसे बड़ी पेशन गोई कौन सी है? जी, आपने यहां से आज शुरू किया है ना। अहद का सबसे बड़ा, उसका अहद की पेशन गोई थी। अहद वो अहद जो दाऊद के साथ किया गया था खुदा का। दैट इज द बेसिक पॉइंट, वो बेसिक पॉइंट। अगर हम देखें कि नया अहद की जरूरत क्यों पड़ी थी, नए अहद की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो मूसा के दौर में अहद किया गया, इब्राहिम के साथ अहद किया गया, सारे अहदों को इसराइल ने तोड़ा है। देखा जाए तो उन्होंने मॉरल लॉ को तोड़ा। मॉरल लॉ होता है 10 एकाम, जो 10 हुक्म है उनको हम मॉरल लॉ कहते हैं, ठीक है। और वो लॉ तोड़ने की वजह से खुदा ने नए अहद का वादा किया। और यिर्मयाह जो है वो मेजर जो सबसे बात करता है वो यही बात करता है कि नया अहद खुदा बांध रहा है। वो ना सिर्फ इसराइल के लिए होगा बल्कि पूरी अदर नेशंस के लिए भी होगा, जिसको हम आगे चल के देखेंगे कि दूसरी कौमों के लिए खुदा यिर्मयाह के थ्रू क्या बताते हैं। मैं क्लियर कर पाया आपको? जी, थैंक यू, वेलकम। सो खुदा बनी यहूदा और बनी इसराइल, यानी कि इसराइल के घराने का वर्ड यूज करते हैं, दोनों के लिए अलग-अलग यूज करते हैं कि इसराइल याकूब के घराने को जो है उनकी सजा जो है उनके गुनाहों की वजह से मिल रही है, जबकि खुदा ने हमेशा हर अहद में कहा है कि गुनाह नहीं करना है, वरना अहद तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। ये हमेशा सारी जगहों पर यही बात हमें मिलती है। मगर खुदा रहीम भी है, माफ भी करता है। और अगर हम 31 बाब को ही देखें और उसमें आगे अगर चले जाएं तो खुदा माफी की बात करते हैं। खुदा अगर 38 आयत में चले जाऊं 31 बाब की, तो वहां पे लिखा है, देख वो दिन आते हैं कि खुदा फरमाता है कि ये शहर बसनएल के बुर्ज से कोने के फाटक तक खुदावन के लिए तामीर किया जाएगा, और फिर जरीब सीधी कोहे जारीब से होती हुई जो आता के को घेर लेगी, और लाशों राख के तमाम वादी और सब खेत कदरून के नाले तक और घोड़े फाटक के कोने तक मशरिक की तरफ खुदावन के लिए मुकद्दस होंगे। फिर वो हमेशा तक ना कभी उखाड़ा ना गिराया जाएगा। सो यिर्मयाह भी वही कर रहा जो यशायाह ने किया था, बट यिर्मयाह जो है वो ये बात उसकी आंखों ने देखी, जो सजा जो जजमेंट हुई थी उसकी आंखों ने वो सब कुछ देखा, और उस सजा में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ मिली है। आगे चल के हम देखेंगे कि यशायाह को कैसी कैसी तकलीफें मिली हैं। वो शख्स कहीं पर भी खुश नजर नहीं आता, कहीं पे भी खुश नहीं नजर आता, वो रोता है। और खुदा एम्पावर कर रहे हैं, खुदा वादा कर रहे हैं कि मैं एम्पावर भी करूंगा इंसान को, और उसको इस अहल भी बनाऊंगा कि मैं उनके लिए एक अच्छा शहर तामीर करूंगा, एक ऐसा सेफ शहर बना दूंगा कि जैसे हमने यशायाह में पढ़ा कि सहून का इलाका, सहून की बेटी जो है वो खुशी मनाए, खुशी के गीत गाए, क्योंकि खुदा जो है सहून को फिर दोबारा बिल्डअप करेंगे, उसको शादाब करेंगे वैसे ही जैसे अदन था। सो खुदा वादा करते हैं कि मशरिक तक मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, इसराइल को दोबारा से बहाल कर दूंगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा हमारे गुनाह को है जो बख्श देता है। इसराइल के गुनाह बेशक जितने मर्जी थे, फिर भी खुदा ने उनको बख्शा है। खुदा हमेशा उनको बख्श देते हैं, टोटली खत्म नहीं करते हैं। जबकि बाकी कौमों को देखें तो कोई भी नहीं बचता, सब खत्म कर दिए खुदा ने। खुदा ने किसी को भी नहीं बख्शा।
यशायाह 24 बाब 1 से 6 आयत मेरे साथ निकालिए। सब जाग रहे हैं ना? देखो नहीं, मैं- खुदावन जमीन को खाली और सरनगू करके वीरान करता है मैं आपके साथ और जाग रहा हूँ। उसके बाशिंदों को तितर बितर कर देता है। और यूं होगा कि जब रायत का हाल वैसा ही काहिन का, जैसा नौकर का वैसा ही उसके साहब का, जैसा लौंडी का वैसा ही उसकी बीबी का, जैसा खरीदार का वैसा ही बेचने वाले का, जैसा बिल्कुल सही। कर्ज जी कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी। जैसा सूद देने वाले का वैसा ही सूद लेने वाले का, जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी और बाशिद्दत गारत होगी, क्योंकि ये कलाम खुदावंद का है। जमीन गमगीन होती और मुरझाती है जहां बेताब और पस मुर्दा होता है, और जमीन के अहली कदर लोग नातवा होते हैं। जमीन अपने बाशिंदों से नजिस हुई क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, आयन से मुनफर हुए, अहद अब्दी को तोड़ा। इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया और उसके बाशिंदे मुजरिम ठहरे। इसीलिए जमीन के लोग भस्म हुए और थोड़े से आदमी बच गए। नहीं, मैं गमजदा और थैंक यू। बस। बस यहाँ पर हमें खुदा का गजब भी नजर आ रहा है और खुदा बचा भी रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अहद अब्दी को तोड़ डाला। अब्दी अहद कौन सा है? खुदा ने अहद बांधा मूसा के थ्रू कि तुमने मेरे आयन हुक्मों पर अमल करना है। हम जब भी कोई गलती करते हैं, जब भी कोई गुनाह करते हैं, तो हम एक अहद को तोड़ते हैं, बगावत करते हैं। और सैमुअल की किताब उसके 15 बाब में लिखा हुआ है कि हुक्म तोड़ना और बगावत करना और जादूगरी ये सब एक बराबर। जब हम हुक्म तोड़ते हैं तो बगावत करते हैं। बगावत और जादूगरी एक ही चीज है, मुतरादफ है एक दूसरे के। और खुदा को बहुत सख्त नफरत है बगावत से भी और जादूगरी से भी। सो द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर वो खुदा कह रहे हैं कि तुमने मेरा अब्दी ऐद भी तोड़ा, मैं सजा भी दूंगा, जमीन को वैरान भी करूंगा। जमीन के बाशिंदे जो मुजरिम ठहरे हैं वो लोग भस्म भी होंगे, लेकिन थोड़े से आदमी बच जाएंगे। खुदा का रहम भी मौजूद है। खुदा कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में करनी है, और वो हमेशा जो है वो हमारे गुनाहों को बख्श देता है, लेकिन हमारे गुनाह जो है उनका इकरार करना लाजिम है। मगर यहाँ पर हमें इसराइल का गुनाह बहुत बड़ा नजर आ रहा है। खुदा कह रहे हैं कि तुमने मेरा अब्दी अहद तोड़ डाला है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब पुराने वक्तों में अहद बांधा जाता था, जब इब्राहिम का अहद देखते हैं हम, उस दौर में जब अहद बांधा जाता था दो पार्टीज के दरमियान, दो लोगों के दरमियान जब अहद किया जाता था, तो वो अहद करने का एक खास तरीका होता था। अब वो तरीकाकार क्या होता था? वो तरीकाकार ये होता था कि एक जानवर लिया जाता था, उसके टुकड़े किए जाते थे, आधे टुकड़े एक तरफ रख दिए जाते थे, आधे टुकड़े एक तरफ कर दिए जाते थे, और दरमियान का रास्ता जो है वो खाली छोड़ दिया जाता था। और उनमें से पहली पार्टी गुजरती थी और फिर उधर से दूसरी पार्टी गुजरती थी। इस बात का अहद होता था कि जिस बात के लिए हम अहद कर रहे हैं इसको तोड़ेंगे नहीं। और अगर दोनों में से कोई भी फ्रीक उसको तोड़ देगा तो क्या होगा? वाजिबल कत्ल होगा और उसके कत्ल का बदला नहीं लिया जाएगा। ये इस बात की एश्योरिटी होती है। जब इब्राहिम भी कुर्बानियों के लिए परिंदे और जानवर काट के एक साइड पे और एक साइड पे उस पर एक साइड पे उधर रखता है, तो उसमें से इब्राहिम को नहीं चलवाया जाता, बल्कि लिखा है कि तनूर से एक आग उठती है और वो आती है और वो भस्म करके चली जाती है, गुजर के चली जाती है। दैट मीन्स कि वो अहद खुदा ने सिर्फ अकेले बांधा है और इब्राहिम के साथ वादा किया है, क्योंकि खुदा जानते थे इस बात को कि अगर ये इंसान है, अगर ये अहद तोड़ देगा तो वाजिबुल कत्ल होगा, लाजिम इसकी मौत वाकया होगी। इसलिए खुदा ने अकेले ही उस लाइन में से गुजरे, दोनों लोग नहीं गुजरे उस अहद में से। ये तरीकेकार था अहद करने का उस दौर में। सो जब अहद किया जाता है तो दोनों में से एक वाजिबुल कत्ल है। और जब खुदा अहद बांध रहे हैं, अब्दी अहद को लिखा है, क्योंकि मेरा अब्दी अहद तोड़ा है इन्होंने। इंसान ने क्या किया है, यानी इसराइली और यहूदी याकूब के घराने ने मेरा अब्दी अहद तोड़ डाला है। तो जब अब्दी अहद तोड़ा है तो फिर जाहिर है उसके साथ
एक चीज नहीं, बहुत सारे मॉरल गुनाह करते हैं हम। हबकूक की किताब, उसका दूसरा बाब पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो लंबा बाब है, वो खुद पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि खूरेजी भी करते हैं, लालच भी है, गर्दनें भी काटते हैं, सब कुछ करते हैं, सब गुनाह करते हैं, तो खुदा अदालत जरूर करेगा। और बाद में खुदा कौमों के लिए भी अदालत के लिए बात करते हैं। आमूस की किताब 2 बाब उसके पहले आयत में भी खुदा मुखातिब होते हैं इसराइल के साथ भी, पूरी जो है नेशंस जितनी दूसरी कौमें हैं उनके साथ भी खुदा मुखातिब होते हैं कि मैं उनका भी इंसाफ करूंगा, क्योंकि इसराइल के गिर्द और बहुत सारी नेशंस रहती थी, जिनमें मुआबी भी थे, अमूनी भी थे, अमलीकी भी थे, मिस्री भी थे, सब लोग वहां थे, फलस्तीनी भी थे, वहां पे बहुत सारे सराउंडिंग में उनके रहते हैं। अगर आज का भी नक्शा हम देख लें तो हम देखेंगे कि वहां पे शाम भी मिलता है हमें, इराक भी करीब मिलता है, मिस्र भी मिलता है, सऊदी भी मिलता है, लेबनान भी मिलता है। सो उसके गिर्द बहुत सारी नेशंस है। फलस्तीन भी उनके बिल्कुल ही करीब है, वो तो बहुत ज्यादा ही करीब है। सो खुदा के हुक्मों को तोड़ता हुआ नजर आता है इसराइल, इसलिए खुदा नया अहद का जिक्र करते हैं कि मैं नया अहद बांधूंगा। और जब भी अहद बांधा, जब मूसा के साथ खुदा ने अहद बांधा था, इस्तिश्ना 4 बाब 26 आयत में पढ़ लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा, टाइम कम है। उसमें भी खुदा जो मूसा है वो कहता है, खुदा कहते हैं कि मैं आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूँ। और यशायाह के 1 बाब 2 आयत में भी लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन को गवाह बनाया गया। और खुदा उसी बेसिस पे, क्योंकि जमीन पे जब गुनाह होगा तो ऑब्वियसली वो गवाह होगी कि मेरे गुनाह हुआ। क्योंकि जब हम देखते हैं कायन और हाबिल को देखते हैं, कायन हाबिल को मारता है, तो खुदा कहते हैं कि जमीन में से तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। सो दैट मीन्स कि जमीन और आसमान को गवाह बनाया गया है इन सारे अहद जितने भी किए गए हैं, और उन्हीं की बेस पे इनको सजा का हुक्म होता है। अब नया अहद जो बांधा गया है उसमें एक बादशाह का जिक्र मिलता है हमें। अगर हम 31 बाब में चले जाएं तो बहाली का जिक्र मिलता है हमें बहाली का जिक्र मिलता है कि खुदा कहते हैं कि 33 आयत में, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है मैं अपनी शरीयत उनके बातों में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। दाऊद के साथ जो अहद किया गया था उसमें कहा गया था कि भी उसके घराने में तख्त पर बैठने के लिए बादशाह की कमी नहीं होगी। उसी अहद को दोहराता है यिर्मयाह एज अ प्रॉफिट, वो दोहराता है इस बात को 33 बाब उसकी 17 आयत में। वहां लिखा हुआ है 33 बाब यिर्मयाह की किताब 33 बाब 17 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी ना होगी। ठीक है। और अगर 31 बाब को 33 से ऑनवर्ड अगर हम 40 तक पढ़े तो वहां पर नजर आता है खुदा कहता है कि मैं इनको बहाल करूंगा। यिर्मयाह के दौर में जितने भी दाऊद की नस्ल के बादशाह थे हटा दिया गया, खुदा ने बादशाह उनसे थोड़ी देर के लिए छीन ली। मगर नए अहदनामा में हमें यीशु नजर आते हैं जो एवरलास्टिंग किंगडम के मालिक हैं, जो ना खत्म होने वाली सल्तनत के मालिक हैं। और वो कहां से पैदा हुए, किसकी नस्ल से? दाऊद के, यहूदा के घराने से, दाऊद की नस्ल से वो पैदा हुए, क्योंकि खुदा ने जो वादा किया था खुदा ने वो अपना वादा पूरा किया। हम जब आगे चल के यिर्मयाह को देखेंगे हमें इसराइली नजर नहीं आते, यहूदा की लड़ी नहीं हमें नजर आती है, कहीं पे उसका तज़किरा नहीं मिलता हमें, लेकिन खुदा अपने वादे जो है वो याद रखते हैं। यीशु की सूरत में वो वादा पूरा हुआ, एवरलास्टिंग किंगडम, कभी भी उसके तख्त पर बादशाह की कमी नहीं होगी। और यीशु यहूदा के कबीले से पैदा हुए हैं। यशायाह इस बात की तस्दीक करता है कि इसी के तने से एक कौंपल निकलेगी, एक शाख निकलेगी। यशायाह 9 बाब में लिखा है हमको एक बेटा बख्शा गया जो मालिक है, जो खालिक है, जो मौजूद था शुरू से। क्योंकि यिर्मयाह 23 बाब 5 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 23 बाब 5 में लिखा, देखो वो दिन आते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। न्यू कवनेंट, नया अहद जो यिर्मयाह डिक्लेयर करता है, और वो अपनी मर्जी से डिक्लेयर नहीं करता, जो खुदा उसको कहते हैं वो वही बोलता है। सो नया अहद खुदा
बांधते हैं, और वो हमें हम लोग लकी हैं कि हमने उस अहद की फुलफिलमेंट देखी है। हमने देखा है, हम आज के दौर में 21st सेंचुरी में मौजूद है कि मसीह उस पेशन गोई के मुताबिक पैदा भी हुए, वो अपने तख्त पे बैठे और अपनी बादशाहत भी उन्हीं के पास है, और वो साफ कहते हैं कि मेरे बगैर बाप तक कोई नहीं जा सकता। Whosoever, मसीह ने पूरी दुनिया के लिए, हर इंसान के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम उसको कबूल करके खुदा के हजूर पहुंचते हैं या हम उसे ना कबूल करके कहीं और जाते हैं। खुदा वादा करते हैं नए अहद का, और नए अहद का वादा जब करते हैं तो वो हिजकियेल की किताब 36 बाब 24 से 28, कोई निकालेगा जरा जल्दी से पढ़ दे। 24 बाब, ये नए अहद जी, हिजकियेल की किताब 36 बाब 24 से 28। अगर नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। चलें पढ़ दे, मैंने निकाला लेकिन आप पढ़। उन कौमों से में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको नायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा, और तुम मेरे एहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। वापिस यिर्मयाह 31 पे आ जाते, 33 पे खुदा क्या कहते हैं? मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उससे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हिजकियेल भी इस बात की फुलफिलमेंट करता है कि जो अहद का अनाउंसमेंट यिर्मयाह ने की है खुदा के कहे के मुताबिक, उसकी फुलफिलमेंट के लिए हिजकियेल भी इस बात की तस्दीक करता है। उसके बाद फिर हम योएल के पास चले जाते हैं। योएल की किताब 2 बाब 8 है। हम नया अहद देख रहे हैं जो यिर्मयाह एज अ प्रॉफिट, एज अ नबी डिक्लेरेशन दे रहा है। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते और हर एक अपनी राह पर चला जाता है और जंगली हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। 2 बाब 8 आयत, नहीं सॉरी 28 है। I'm sorry my bad। 28 आयत आपने बोला। इसके बाद में हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और मैं जमीनों आसमान में अजायब जाहिर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अमाल की किताब 2 बाब 17 आयत में भी इस बात की तस्दीक हमें मिलती है कि जो खुदा ने अहद बांधा था, जो कोवेनेंट यिर्मयाह के थ्रू नया अहद खुदा ने कहा था, उसकी फुलफिलमेंट हमें मिलती है 2 बाब 17 आयत अमाल की किताब रसूलों के कर्तव्य में। ठीक है, अब वो नए अहद की तस्दीक नए अहदनामा में नवे नेम में जो है वो पहला करंथियों 11 बाब 25 आयत में भी मिलती है, जब वहां पर यीशु इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि ये पहला मेरे खून में एक नया अहद है। वो अहद जिसकी डिक्लेरेशन यिर्मयाह करता है, यीशु उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। यिर्मयाह एक नबी की हैसियत से जो खुदा ने उसको कहा कि मैं एक नया अहद बांधूंगा, वो अहद किसने फुलफिल किया? यीशु ने अहद फुलफिलमेंट की उसकी। पौलुस इब्रानियों 8:9-10 बाब में सारी शरीयत का जिक्र करते हुए, उसको कंपाइल करते हुए कहते हैं कि जब यीशु ने हमसे एक नया अहद बांध लिया तो हमें पुराने अहदों की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि यीशु ने सारी चीजें पूरी कर दी है। और मसीह ने उस अहद की अनाउंसमेंट की है कि मेरे खून में मेरे खून में नया अहद है, ये पहला मेरे खून में नया अहद है। ये वही अहद है जो यिर्मयाह ने डिक्लेरेशन दी और यीशु ने उसकी अनाउंसमेंट करके फुलफिलमेंट कर दी कि ये अहद मेरी तरफ से है। हम शुक्र करते हैं खुदा के, तो खुदा ने
हमें हमें इस दौर में पैदा किया कि हम मसीह को भी जानते हैं और उस नए अहद के अंदर हम इजीली जिंदगी गुजार सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं, अभी तक तो बड़ा डिटेल में सीखा है। जी बहुत बहुत जबरदस्त है। मैं ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, अहद और वादा, जी, काइंडली ये जरा ना डिफाइन कर देना भाई साहब। अहद और वादा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे टाइम दें सर, इबादत I के mean, बाद क्योंकि मुझे लुगत से देखना पड़ेगा। उर्दू लुगत में अगर आपके पास उर्दू डिक्शनरी है तो आप हम सब की रहनुमाई कर सकते हैं, अदरवाइज आई हैव टू सर्च इट आउट, डिग इट आउट। मैं इस पे कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहता हूँ जो मेरी दानिस्त में ना हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। भाई जावेद के साथ इसी सवाल के साथ मुत्तफिक होते हुए मैं भी इसको जोड़ देता हूँ ताकि मजीद इसके ऊपर सीख सकेंगे। जैसे बिल्कुल, बताया अहद और गया, वादा मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट सेशन। मगर बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सारे अहद दिखाती है कि खुदा ने अहद बांधे हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया था 8 का, जो जिनसे खुदा ने अहद बांधे हैं, तो इसके बारे में मजीद वाजिया हो जाएगा क्या वो वादे थे और अहद थे, और वादे और अहद में क्या फर्क है। फिर हमें यहाँ पे बिल्कुल उर्दू लुगत के मुताबिक हम कहते हैं रोजा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, रोजा में और फाका में क्या फर्क है। तो जी इसी बारे में फिर मजीद फिर इसको मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, आपने बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि रोजा और फाका में दोनों लफ्जों का मतलब हमें एक ही लगता है, लेकिन है नहीं है, लफ्ज डिफरेंट है मगर ये एक नहीं है। सो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ जिससे कोई एम्बिग्विटी पैदा हो जाए, माइंड में कोई गलत चीज आ जाए। जिस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकता मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है जिसमें मैं कोई टेबा लगा लूं। इसलिए मैं वही अर्ज करूंगा कि मैं नहीं, अगर किसी को इंफॉर्मेशन है, लुगत उसके पास पड़ी है, तो वो ओपन करके डिक्शनरी से जरूर बता सकता है। चलो इबादत के बाद इस पे चलेंगे। अहदों की जो मेजर वो 4 है, जो दाऊद के साथ बांधा गया, इब्राहिम के साथ बांधा गया और मूसा के साथ मेजर है। अहद बहुत सारे होंगे, लेकिन ये वो अहद है जिनके बिना पर इस्राइल चलता है। यस, ये वो मेजर अहद। अदनान भाई बाद में रफाकत करते हैं, पहले फिर जरूर सर। सो आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर इसका आंसर करूंगा, प्रॉपर एज पर द डिक्शनरी ऑफ उर्दू। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन जरूर बाद में कर सकता है। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को समझ आ गई है दैट्स वेरी गुड, अगर किसी को नहीं समझ रही, वंस अगेन ही कैन आस्क मी, आई कैन डू दैट अगेन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। छोटी सी पाकनाम की शुक्रगुजारी की एक प्रेयर ले लें छोटी सी पहले, फिर उसके बाद हम सेक्शन में जा सकेंगे। जरूर जरूर सर। अभी जो भी कुछ दुआ करे प्लीज पास्टर शहजाद की बेटी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, और अपनी पर्सनल दुआओं में भी उसे याद रखना, क्योंकि वो बीमार है और खुदावंद उसे जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, और खुदावंद उनको इस आजमाइश में से निकाले। थैंक यू। ओके, लेट्स प्रे। आई एम गोना प्रे फॉर दैट। ओके, थैंक यू। ये भी शुक्रगुजारी की दुआ जरूर करना सर, कि खुदावंद ने उनको सेहत जिंदगी दी है और वो जिससे अपने बच्चों में घर वापस आए हैं। ऐ बाप जिंदा अब्दी जलाली कुदूस खुदाए रहीम बुजुर्ग पवित्र पिता एलोहीम बाप, हम आपका शुक्र बजा लाते हैं और पाक आपका शुक्र बजा लाते हैं, यीशु मसीह नासरी आपका शुक्र बजा लाते हैं इस वक्त के लिए जो आपने हम सबकी जिंदगियों में बख्शा कि हम आपके कलाम को सीख सकें और आपके नाम का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। कुदूस और रहीम बुजुर्ग बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आप अलमास भाई को घर सही सलामत वापस लेके आए हैं। कुदूस और रहीम बुजुर्ग, आपके नाम का जलाल हुआ है, आपके नाम की गवाही पैदा हुई है, इसके लिए शुक्रगुजार है कि आप हम सब की दुआओं को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, इसके लिए शुक्रगुजार है। तमाम वक्त, हर नेमत, हर बरकत, हर आसाइश के लिए शुक्रगुजार है जो आपने हम सबको बख्शा। कुदूस बाप, अपने मुबारक बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह नासरी के बख्शा, इसके लिए शुक्रगुजार है। कुदूस और रहीम बुजुर्ग बाप, हम सब मिलकर आपके हुजूर झुकते हैं और आपसे मिन्नत करते हैं कि भाई शहजाद की बेटी के लिए, सिस्टर अस्मा की बेटी के लिए, कि उन औलाद आपकी तरफ से मिरास है, आपकी तरफ से पेट का फल है। सो कुदूस और रहीम बुजुर्ग बाप,
उस बेटी को आपके मुबारक बेटे के पाक लहू में छुपा देते हैं और मिन्नत करते हैं कि तमाम बदनी कमजोरी, तमाम बीमारी को खत्म कीजिएगा, शिफा बख्शेगा। और कदूस और रहीम बुजुर्ग बाप, आप अपने नाम की खातिर, अपनी गवाही की खातिर, अपने जलाल की खातिर से रहम कीजिएगा, क्योंकि आपका वादा है, मांग तो मैं कौमी तेरी मिरास में कर दूंगा, पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़े बड़े भेद खोलूंगा। कदूस बाप, आप सादिकुल कौल हैं, आप अपने वादों में सच्चे खुदा हैं। आपका वादा है कि तू डर मत, तू खौफ ना खा, हिरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे अपने दाने हाथ की सदाकत से संभालूंगा। और कदूस बाप, हम शुक्रगुजार है कि आपने उस बेटी को शिफा बख्श दी है, उसको संभाला है, कि आप हमारे बाप हैं। मिन्नत करते हैं कि आपके पाक रूह के हजूर के वो उसे शिफा बख्शें और कल आपके नाम की एक बहुत बड़ी गवाही हो। पुत्र पिता, हम आपसे मिन्नत करते हैं क्योंकि आप हमारे बाप हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हम पर रहम करते हैं और हमारी दुआओं को सुनते हैं। यीशु ने कहा है कि मेरे नाम से, मेरे बाप से जो मांगोगे, ईमान रखो, मिल गया तो मिल जाएगा। और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबकी मिन्नत को सुना है, क्योंकि आप ही हमारी कुमक, आप हमारी चट्टान, आप हमारा भरोसा है। कदूस और रहीम बुजुर्ग पुत्र पिता, सो रहम कीजिए, फजल कीजिए, आप शिफा का मंबा है। और हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि आपने हम सबकी मिन्नत को सुना है, इस पूरी मंडली की मिन्नत को सुना है और उस बच्ची को शिफा दी है। वो आपकी बेटी, रहम कीजिए, अपना फजल कीजिए और अपना जलाल ज़ाहिर कीजिए। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमारी मिन्नत को सुन लिया है, अपने मुबारक बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के वसीला से सुना है और रहम किया है और बरकत बख्शी है। इसके लिए शुक्रगुजार। तमाम लोगों को जो भी मौजूद है, पूरी मंडली को बड़ी बरकत दीजिए, स्टेक होल्डर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को बड़ी बरकत दीजिए, अपने साथ चलने का फजल दीजिए। और एक बार फिर से शुक्रगुजार है कि आपने हमारी मिन्नत को, हमारी दुआओं को सुना है। अलमास भाई के लिए स्पेशली शुक्रगुजार है कि आपने उन्हें शिफा, जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती बख्शी है और अपने लोगों में वापस लेके हैं, इसलिए शुक्रगुजार है। बड़ी बरकत दीजिएगा, अपने जलाल के लिए कसरत से हम सबको इस्तेमाल कीजिएगा और हम आपके बड़े अजीम गवाह बने और आपके नाम का जलाल हमारी। सब कुछ मांग लेते हैं खुदा बाप आपसे इस ईमान के साथ कि आपसे मांगा है, आपने अपने मुबारक बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के वसीला से बख्श दिया। आमीन 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 आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, इस हाजिर जमात के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन 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 आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम।